Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss a play, A Dance of the Forest, and it is written by Vol Soyinka. So, starting with the character analysis. First main character we have the character of Dead Man. The dead man was a soldier in a former life who was castrated for his unwillingness to go to war against a neighboring tribe. He took issue with the motives for going to war and so refused to participate. He was sold to a slave dealer and eventually killed. During the time of the play, he has been brought back to life by Aroni to settle the unfinished business of his ill-fated death. He was a prominent soldier in the army of Macha Karibu who was castrated, rendered a slave for his unwillingness to wage a war he considered unjust against a neighboring tribe. His act of thinking and डिफेंस कॉस्ट हिम हिज फ्रीडम। अच्छा जी, जो डेड मैन है वो बेसिकली एक सोल्जर था जो एक वार में जाने से उसने मना कर दिया था। और जो उस दौर का किंग था जिसका नाम माठा कारिबू है, उसने उस किंग को उस वार में जाने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि मैं इस वार में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा क्योंकि ये जो वार है ये बिल्कुल यूज़लेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी वजह से किंग ने गुस्से से उसको कत्ल कर दिया। तो अब जब ये करेक्टर है, अब इसको दोबारा जिंदा किया गया और इसने अपना केस लड़ा। डेड वुमेन। The dead woman was pregnant with the dead man's child when she attempted to plead for her husband's life in the court of Madha Karibu. She was pregnant when she tried to plead for her husband's life in the court of Madha Karibu. She was eventually killed. अब ये जो डेड वुमेन है ये डेड मैन की वाइफ थी और ये प्रेग्नेंट थी। जब इसको पता लगा कि इसके हस्बैंड को ये कत्ल करने लगे हैं तो इसने दरबार में जाके अपने केस लड़ने की कोशिश की थी, या आप कह सकते हैं कि उसने रिक्वेस्ट करने की कोशिश की थी कि उसके हस्बैंड को ना मारा जाए, लेकिन उन्होंने उसके हस्बैंड के साथ साथ डेड वुमेन यानी कि उसकी वाइफ को भी मार दिया था। अब मैं आपको ये बता दूं कि पूरे प्ले में इन दोनों का नेम मेंशन नहीं है, इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है डेड मैन और डेड वुमेन के नाम से। Forest Head. Forest Head is a god who attempts to have the four characters who tortured the dead man and dead woman in a past life remember their sins and atone for them. From the beginning of the play, he attempts to make the four characters who contributed to the dreadful fate of the dead couple realize their sins and atone for them. आप जी ये जो जितना भी केस लड़ा जाना था, ये अब आगे सफरी पे मैं आपको बताऊंगी। ये एक जंगल में लड़ा जाना था, डेड मैन और डेड वुमेन का केस। इसके अलावा दो और लोग भी हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ था। तो ये जो केस पेश किया गया था ये फॉरेस्ट हेड के सामने पेश किया गया था। रोला is a prostitute who was once Madame Tortoise in a past life and queen to Maja Karibu. She is the main reason for the castration of the dead man and the killing of the dead woman. अभी हमारे पास 4 मेन कैरेक्टर आया है रोला का। ये पिछले ज़माने में जो किंग है माजा कारिबू, ये उसकी वाइफ थी और उस टाइम उसका नाम मैडम टॉर्टॉइस हुआ करता था। अब ये एक्चुअली रोला थी जिसने डेड मैन और डेड वुमेन को कत्ल करवाया था। Adenabi was a court historian for Mata Karibu who accepts a bribe from slave trader to sell the soldiers as a slave, even wrongfully stating that the ship he will travel in is not Trotos. His sin consists of accepting a bribe from a slave trader to sell the soldier as a slave. अब ये जो एडिनबी है ये माथा कारिबू का जो कोर्ट था वहाँ ये हिस्टोरियन हुआ करता था। तो इसने ना जो इनका सोल्जर था, इसने रिश्वत लेके अपना जो सोल्जर था उसको बेच दिया था और उसको गुलाम बना दिया था। Akbar Iko, in a former life, he was a soothsayer in the court of Macha Karibu and predicted that the stars did not favor a victory for the king if he chose to go to war. He made sacrifice for the forest head. आपके जो एक्बी रोको है, जैसे आपको पता लगता है कि ये जो इंग्लिश लिटरेचर में हम बहुत से प्लेज वगैरह पढ़ते हैं, नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, ड्रामास वगैरह पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इडिपस रेक्स भी पढ़ा था, उसमें ये हम लोगों ने देखा था कि ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि काम करते हैं प्रोफेसी का। तो इसने प्रोफेसी की थी कि जो वार हो रही है उसमें माथा कारिबू को नहीं जाना चाहिए बल्कि वार को रुकवा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो वार हुई तो माजा कारिबू हार जाएगा, यानी कि जो उनका किंग है वो वार लूज कर जाएगा और उनके फिर जितने भी सोल्जर्स हैं वो मर जाएंगे।
मैं आपको बताती चलूं कि ये वही वार है जिस पे जाने से डेड मैन ने मना किया था और उसको मार दिया गया था। Timok is the village carver as well as the court poet in the court of Mata Caribou. अभी एक और हमारे पास करैक्टर आता है डिमोक का, जो कि एक कार्वर था। कार्वर उसको कहते हैं कि जो दख्तों पे नक्श नगारी वगैरह करते हैं। और पिछले ज़माने में वो कोर्ट का ना पोएट था, जो कोर्ट था माटा कारिब का, वहाँ पोएट था। इशोरो इज अ wayward spirit who is seeking vengeance for the death of Orimol. He seeks Timok as Orimol's murderer and is vengeful and spiteful throughout the play. अब ये जो शोरो है ये एक स्पिरिट है। अब ये जो ऊपर मैंने आपको टिमो का बताया, इसने भी एक कत्ल किया था। इसने एक ऑरिमोल को, एक करेक्टर है उसको कत्ल किया था। क्यों कत्ल किया था? क्योंकि ऑरिमोल भी एक कार्वर था और वो डिमोक से ज्यादा अच्छी कार्विंग करता था, अच्छी नक्श निगारी करता था। तो उसने जेलसी में ऑरिमोल को मार दिया था और ये सब कुछ इशोरो ने देख लिया। तो इशोरो भी फिर इस कोर्ट में, ये जो फॉरेस्ट में जो ये हुआ उसमें पेश हुआ और उसने ऑरिमोल का केस लड़ा। Themes of the play: Atonement. Atonement is a major theme of the play. The dead man and dead woman are brought back to the land of the living so that the four mortals who mistreated them in the past will recognize their former sins and atone. While the mortals spend a great deal of the play unaware of this, they eventually realize that the purpose of the dead man and dead woman's visitation is to teach them a lesson, and by the end they go through a kind of conversion, understanding that they have sinned before. अब अटोनमेंट का सीन इस तरह दिखाया गया है थीम प्ले में कि अब बताया गया बेसिकली कि मकसद क्या था डेड मैन और डेड वुमेन का, उनको वापस जिंदगी में लाने का, कि इन लोगों को जिन्होंने इनके साथ जुल्म किया उनको एहसास दिलाया जाए कि उन्होंने कैसे डेड मैन और डेड वुमेन के साथ इनजस्टिस किया था, उनके साथ ज्यादती की थी। और एट द एंड इन लोगों को लेसन मिल भी गया था, यानी कि जो माथा कारिबू नर्स की जो वाइफ है। ये मैंने अभी आपको समरी नहीं बताई, बेसिकली ये वीडियो करेक्टर्स और थीम्स के लिए है, तो समरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बस आप थीम्स के हवाले से ये चीज़ समझ लें कि अटोनमेंट का मेजर थीम ये प्ले करता है कि इनको लोगों को जिन्होंने जस्टिस किया उनको याद दिलाना, और एंड उन्हें रियलाइज भी हो गया था We must atone for our sins, not for punishment, but for the sake of our own souls. अरोनी, अब ये जो गॉड था अरोनी, अब उसका डायलॉग है कि हमें हमारे गुनाहों का पता होना चाहिए, हमारी सजाओं का, लेकिन हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि हमने किसी के साथ क्या किया। उसने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन उसने ये जो लोग थे, ये जो डेड क्या कहते हैं माथा कारिबू था, उसकी वाइफ थी, स्लेव डीलर जो था, इन लोगों के बारे में उसने बोला कि तुम लोग को पता होना चाहिए कि तुम लोगों ने इनके साथ क्या किया। Corrupted power. Corrupted power is another major theme in the play, particularly as it represented in the characters of Martha Caribou and Madame Tortoise. As we are taken back to the place, to the palace of the king, we see that Madame Tortoise exploits her beauty and her power over men in order to stir up discord. Martha Caribou is also corrupted by his immense power, as demonstrated by the fact that he is demanding that his soldiers fight against their better judgment and the fact that he mercilessly punishes free thinking. अब यहाँ करप्टेड पावर का हमें इस तरह का सीन दिखाया जाता है कि कैसे माता कैरिबू ने अपनी पावर का करप्ट किया था, गलत यूज़ किया था। मैडम टोटाइज ने किस तरह गलत यूज़ किया था, माता कैरिबू ने जैसे इस तरह यूज़ किया था कि उसने डेड मैन को कत्ल कर दिया था, इस वजह से कि उसने वार पे जाने से क्यों मना कर दिया। और वो वार लड़ी भी जा रही थी एक औरत के लिए, यानी कि उसकी वाइफ मैडम टोटाइज के लिए। और मैडम टोटाइज का भी क्या किया था कि उसने कैसे अपनी पावर का मिस यूज़ किया, कि उसने प्रोवोक किया डेड मैन को अपनी ब्यूटी के जरिए, लेकिन जब वो उसके काबू में ना, उसने डेड मैन को और उसकी वाइफ को मार दिया। अब यहाँ ये इसका डायलॉग है, What are you? Men have killed for me, men have died for me. Have you flints in your eye? Fool, have you never lived? ये मैडम टोटाइस का डायलॉग है जब वो प्रोवोक कर रही थी डेड मैन को कि तुम किस तरह के आदमी हो, लोग मेरे दरमियान जंगें कर रही, यानी कि वो अपने माचा कार्य वो दूसरे ट्राइब के बारे में बता रही थी कि कैसे दो कबीले मेरे लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, दो कबीले उसके लिए क्यों लड़ रहे थे ये समरी में आता है, लेकिन चलो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। क्योंकि जो माटा कार्य है इसने दूसरे ट्राइब की जो औरत थी मैडम टोटाइस, ये क्वीन थी दूसरे ट्राइब की, इसने उसको भगा के शादी कर ली थी, ठीक है। और मैडम टोटाइस उसके साथ आ भी गई थी, इसलिए जो वो ओल्ड किंग था वो माटा कारिबू के साथ लड़ पड़ा था। तो यहाँ आके भी जो मैडम टोटाइस थी वो इवन के माटा कारिबू के साथ भी लॉयल थी, और वो
डेड मैन को अपनी तरफ प्रवोक करती, तब उसने डरा बोला था कि आदमियों ने मेरे लिए कत्ल किए हैं, तुम क्या हो, तुम्हें नजर नहीं आता, तुम फूल हो कि क्या हो। Wounds and trauma. The play depicts the ways that people carry around trauma and wounds from the past. That everyone has some sensitive part of their biography that haunts them. The forest head knows this and attempts to bring these wounds to light in hopes that those who have been hurt in the past can move on. वुंड्स और ट्रामा का जिक्र किया गया है कि देखिए लोगों को मरने के बाद भी उनके गम नहीं भूलते। जो डेड मैन और डेड वुमेन थे उनका ड्रामा देखिए वो मरने के बाद भी नहीं भूल रहे थे, तो इसलिए उनको जिंदा किया गया था। और जो फॉरेस्ट हेड है उसने इनको ये होप दी थी, उसने अटेम्प्ट की थी कि इनको इनका हक दिया जाए। नो वन टू मीट मी, आई नो दिस इज द प्लेस। अब ये देखिए कितना सैड सा डायलॉग है डेड वुमेन का, कि जब उसको उठाया गया तो उसने बोला कि मुझे पता है मेरे से कोई नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये वो प्लेस है कि जहाँ मुझे जस्टिस दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।